Good afternoon, my dear students. So, dear second year students, today we will see the retinal detachment, and this topic is taken from ophthalmic nursing, MSN second. Before starting this topic, I just want to revise some important parts of eye. So, this white portion is called the sclera. This is cornea. And this is called lens. In previous classes we have seen in the eye there is two cavity, anterior cavity and posterior cavity. Now we will see the anterior cavity is divided into anterior cavity is divided into two chambers, anterior and posterior, and this cavity is divided, anterior and posterior cavity is divided because of lens. So first we will see the anterior cavity, and in anterior cavity there is two chambers, anterior and posterior. First, in the anterior chambers is starting from cornea to iris, then iris to lens. This is the posterior chamber. In anterior chamber it is starting from cornea to iris. Posterior chamber it is from iris to lens, and this both chambers is filled with aqueous humor. Then next it is the posterior cavity. Posterior cavity, this is the lens and this is the retina. So this comes under the posterior part, and this is filled with the vitreous humor. So here we have seen the eye is divided into two cavities, that is anterior and posterior cavity. Anterior cavity is divided into two chambers, that is anterior and posterior chamber. Anterior chamber is starting from the cornea to iris, then posterior chamber started from iris to lens. Then this both chambers is filled with aqueous humor. Then posterior cavity, it is starting from lens to retina, and this cavity is filled with vitreous humor. Today we will see the retinal part. So inner lining of the eye, it is called the retina. Then center part is filled with the vitreous gel. Center part of the eye is filled with the vitreous gel. तो आज हम जो भी देखेंगे वो हम इस विट्रस जेल और रेटिना के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, कि हाउ रेटिनल डिटैचमेंट इज अकरिंग. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ रेटिना. So retinal detachment definition: separation of the sensory layers of the retina from the underlying retinal pigment epithelium. That means जब रेटिना की जो सेंसरी लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं, कहाँ से? फ्रॉम द अंडरलाइंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड द रेटिनल डिटैचमेंट. रेटिना की सेंसरी नर्व्स, सेंसरी लेयर्स जो होती हैं जब सेपरेट हो जाती हैं, कहाँ से? फ्रॉम द अंडरलाइन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड द रेटिनल डिटैचमेंट. क्लासिफिकेशन: फर्स्ट, it is the rhegmatogenous retinal detachment. Rhegmatogenous, that means discontinue or break. It is usually associated with a hole or tear in the sensory retina. ये तब होता है जब रेटिना में जो सेंसिटिव रेटिना है
उसमें किसी प्रकार का टीयर हो जाएगा या होल हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। एंड दिस अलाउइंग सब रेटिनल फ्लूइड टू pass from the vitreous space into the subretinal space between the sensory retina. That means जब ये टीयरिंग हो जाता है, टीयरिंग ऐसे हो जाता है, ये देखिए, दिस वन इज कॉल्ड टीयरिंग, रेटिनल डिटैचमेंट। धीरे धीरे रेटिनल डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो रहा है, ये टीयरिंग हो गया है, ये ओपनिंग हो गया है। ओके तो जब ये टीयरिंग या होल या ब्रेक हो जाता है तो ये फ्लूइड को पास करने के लिए अलाउड कर देता है, कहाँ से? फ्रॉम द विट्रस स्पेस टू सब रेटिनल स्पेस, किसके बीच में? बिटवीन द सेंसरी रेटिना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट मीन्स होता है, ट्रैक्शन मीन्स पुलिंग। अट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट कैसे अकर्स होता है? अकर्स व्हेन फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू कॉज्ड बाय एन इंजुरी, इन्फ्लेमेशन और न्यूवेस्कुलराइजेशन पुल्स, जब ये सारे क्या करेंगे? पुल्स द सेंसरी रेटिना, कहाँ से? फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड द ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, तो इट अकर्स कब अकर होता है? जब फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं कॉज्ड बाय इंजरी, इन्फ्लेमेशन या न्यूवेस्कुलराइजेशन, जो कि क्या करेंगे? पुल्स द सेंसरी रेटिनल फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड द ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। मतलब जो हमारा मिडिल लेयर में, मिडिल सेंटर में जो हमारा विट्रस जेल जो होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जब वो सिकुड़ जाता है तो वो अपनी तरफ खिंचेगा। तो जब अपनी तरफ में ट्रैक्शन करेगा, पुल करेगा रेटिनल, सेंसरी रेटिनल को जब अपनी तरफ में पुल करेगा तो उसको बोला जाता है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, जब टीयरिंग हो रहा हो, मान लो जो ये लाइनिंग ऑफ द आई है, इनर लाइनिंग ऑफ द आई, इट इज कॉल्ड द रेटिना, जब इसका सेपरेट होने लगेगा, अंडरलाइन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, तो जब वो टीयर हो रहा है, जब वो ओपनिंग हो रहा है, जब वो होल हो रहा है या जब ब्रेक हो रहा है, तो वो पहला क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन होगा आपका, दैट इज रेगमेटोजीनस। और जब उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जब वो जो विट्रस जेल है जब बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगेगा, तो वही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? वो अपनी तरफ पुल करेगा सेंसरी रेटिना को, तो दैट इज द ट्रैक्शनल। ठीक है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। एंड थर्ड वन इट इज द एस्क्यूडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एस्क्यूडेटिव मीन्स होता है ड्यू टू वुंड फ्लूइड प्रोसीजर, मतलब फ्लूइड जो होगा वो प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, ड्यू टू वुंड, कोई भी वुंड के कारण जब फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड द एस्क्यूडेटिव। ठीक है, तो एन एस्क्यूडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इंजुरी और वेस्कुलर अबनॉर्मलिटीज दैट रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? इन फ्लूइड एक्यूमुलेशन। क्या होगा? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा अंडरनीथ द रेटिनल। ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ होल, टीयर और ब्रेक। ठीक है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। क्यों हो रहा है? ड्यू टू एनी इन्फ्लेमेशन, इंजुरी और वेस्कुलर अबनॉर्मलिटीज, दैट इज कॉल्ड द एस्क्यूडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, तो तीनों चीज हो रहा है। दिस इज द इनर लाइनिंग ऑफ द आई, इट इज कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, सेंटर पार्ट में क्या होता है? सेंटर पार्ट इट इज फिल्ड विद द विट्रस जेल। ठीक है, जब विट्रस जेल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है वो, तो इससे क्या होगा? रेटिनल का टीयरिंग होना स्टार्ट होने लगेगा। टीयरिंग मतलब होल हो जाना या ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो वो अंडरलाइन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से वो थोड़ा टीयर होने लगेगा। रेटिना, सेंसरी रेटिना जो है वो धीरे धीरे
टीयर होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा या फिर ओपन होने लगेगा धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ने के कारण आपका सेकेंड आने लगेगा कि वो कॉन्ट्रैक्शन बनने से वो अपनी तरफ खींचेगा, जो हमारा विट्रस जेल जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, तो दैट इज ट्रैक्शन। देन ट्रैक्शनल के बाद होता है एक्सक्यूडेटिव। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी वुंड की वजह से जब फ्लूइड प्रोड्यूस होने लगता है तो दैट इज कॉल्ड द एक्सक्यूडेटिव। तो इधर पे क्या होगा, इसी कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, इसी पुलिंग के वजह से, टीयरिंग, पुलिंग, कॉन्ट्रैक्शन, इन सब के वजह से क्या होने लगेगा, फ्लूइड धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगा और इंक्रीज होने लगेगा। पहले बिहाइंड, रेटिना के बिहाइंड में, उसके बाद अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो धीरे धीरे ये और इंक्रीज होता जाएगा और इंक्रीज होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि विजन लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमको पता है रेटिना पूरा एक इमेज तैयार करता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, वी हैव सीन हाउ द लाइट पासेस। ठीक है, लाइट कैसे पास होती है, फर्स्ट कॉर्निया, आफ्टर दैट लेंस, देन लेंस के बाद ये कहाँ जाएगा, लेंस के बाद आपका जाएगा रेटिना पे, रेटिना के बाद आपका जाएगा ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक डिस्क पे जाएगा, फिर ऑप्टिक डिस्क के बाद ये जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं उसी के हेल्प के थ्रू क्या होंगे, ये सेंसेस जाएंगे हमारे ब्रेन में और तब जाके हम कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ चीज़ समझ पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो लाइट पास करने का कौन कौन से पार्ट्स हमारे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इट इज द कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया से ही लाइट पास होगी। कॉर्निया के बाद हमारा होता है लेंस, लेंस के बाद हमारा होता है रेटिना, रेटिना के बाद होता है हमारा ऑप्टिक डिस्क, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू सेंसेस पास होंगे टू द ब्रेन को। ठीक है, so now we will see the causes of retinal detachment. First one, it is the aging above 50. Second, diabetic neovascularization, that means due to diabetic retinopathy. Then familial tendency means अगर फैमिली या जेनेटिक कोई हिस्ट्री है, ठीक है, अगर किसी को पहले कोई आई डिसऑर्डर हुआ है या कुछ भी, तो उनको भी होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। देन ड्यू टू हैमरेज, देन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस मीन्स व्हेन टिश्यूज आर इंज्यूर्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रॉमा, टॉक्सिन्स, ठीक है, हीट और एनीथिंग। ठीक है, देन मायोपिया, दिस इज मेन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, मायोपिया, मायोपिया दैट मीन्स हाइपर मायोपिया इज वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, मीन्स जिनको माइनस नंबर में जिनको चश्मा लगा हुआ है, तो उनका चश्मे का नंबर जिनका चश्मे का नंबर ज़्यादा है उनको भी रेटिनल डिटैचमेंट होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी रहता है। देन ट्रॉमा, उसके बाद ट्यूमर, आफ्टर दैट इंट्राऑक्यूलर सर्जरी, कोई भी इंट्राऑक्यूलर सर्जरी हुई होगी तो उसके कॉम्प्लिकेशन से या उसके कारण से भी होने की चांसेस रहती हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, विट्रस बॉडी ट्रैक्शन कॉसेस रेटिनल टीयर और होल्स। मतलब विट्रस बॉडी ट्रैक्शन जब हमने पढ़ा है, जब मिडिल सेंटर पार्ट में जो हमारा विट्रस जेल जो रहता है, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने लगते हैं, जब वो सिकुड़ने लग जाता है, तो वो क्या करेगा, पहले तो टीयरिंग करेगा, देन उसके बाद पुलिंग करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो जब वो पुलिंग करने के बाद वो क्या करेगा, एक्यूमुलेशन और ज़्यादा किस चीज़ का होने लगेगा, वाटर का होने लगेगा, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए जो विट्रस जेल होता है उसमें 99% वाटर होता है। ठीक है,
तो जब अगर हमने उसके थर्ड स्टेज में उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो क्या होगा, वाटर पूरी तरीके से इंक्रीज होने लगेगा और हमको रेटिनल डिटैचमेंट के कारण विजन लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेज में आपको पता चल जाएगा क्योंकि टीयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड में पुलिंग स्टार्ट हो जाएगा, देन थर्ड में अगर आपने तब भी ट्रीटमेंट नहीं कराया तो एक टाइम पे ये होगा कि रेटिनल बिहाइंड में फ्लूइड उसका एक्यूमुलेशन वाटर फिल्ड हो गया है और जो कि ट्रीटमेंट ना कराने से क्या होगा, आगे भी पूरी तरीके से वाटर इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते होते वो क्या करेगा, एक टाइम पे जो सेंसरी रेटिना है वो पार्शली या स्मॉल या कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाएगी। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में भी सेम है, जैसे बॉडी ट्रैक्शन ड्यू टू द बॉडी विट्रस बॉडी ट्रैक्शन इट कॉसेस रेटिनल टियर। ओके, विट्रस बॉडी ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, रेटिनल टियर हो जाएगा। ठीक है, फिर विट्रस फ्लूइड लीक थ्रू होल्स, जो विट्रस, देखो अब ये टियर बन गया है, टियर की वजह से क्या होगा, विट्रस फ्लूइड क्या होगा, लीक होगा। कहाँ पर, थ्रू द, कहाँ से, थ्रू द होल्स और टियर्स बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रेटिनल डिटैचमेंट अकर्स। पहले ट्रैक्शन हुआ, ट्रैक्शन की वजह से टियरिंग हो गया, टियरिंग की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा। फ्लूइड जब एक्यूमुलेट कहाँ होने लगेगा, बिहाइंड द रेटिना, और उसकी वजह से इंक्रीजिंग द वाटर और इंक्रीजिंग द फ्लूइड, इट इज अकर द रेटिनल सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड द रेटिनल डिटैचमेंट। देन असेसमेंट फाइंडिंग्स में हम कैसे देखेंगे, फ्लोटिंग स्पॉट्स, फ्लोटिंग स्पॉट आपको अलग ही दिखने लगेगा। देन रिकरेंट फ्लैशेस ऑफ लाइट, मतलब रिपीटेड, दैट इज फोटोस्पिया। ठीक है, फोटोप्सिया जिसको बोला जाता है, फोटोप्सिया, दैट मीन्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, मतलब ये ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली जो होता है, ये जो फ्लैशेस ऑफ लाइट होता है, रिकरेंट फ्लैशेस ऑफ लाइट, ये पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट में ज़्यादा कॉमनली दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फोटोप्सिया। ठीक है, दैट मीन्स रिकरेंट फ्लैशेस ऑफ लाइट। देन उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इन डायग्नोस्टिक टेस्ट, फर्स्ट ऑप्थाल्मोस्कोपी, देन सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोपी, दैट मीन्स रिवील्स रेटिनल टियर और डिटैचमेंट। देन थर्ड वन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी डायग्नोस किया जा सकता है। देन फ्लोरोसेन में क्या होता है, एंजियोग्राफी में, इसमें हम लोग ब्लड वेसल्स एग्जामिन करते हैं, ब्लड वेसल्स एग्जामिन करते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स इन द रेटिना, हम लोग इसमें ब्लड वेसल्स जो रेटिना में है उसका एग्जामिनेशन करते हैं। देन टोनोमेट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, टोनोमेट्री में हमने यस प्रीवियस क्लासेस में देखा है, टोनोमेट्री में वी विल सी द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ओके, देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस we will find in or we will see in retinal detachment. First one, it is the blindness. Second one, it is the swelling, itching, blurred vision, discomfort, watery eyes or redness. So I am going to summarize my topic, and management I will take tomorrow. So today we have seen the retinal detachment, definition of retinal detachment. We have seen suppression of the sensory layers of the retina, कहाँ से, from the underlying retinal pigment epithelium, that is called the retinal detachment. सेंसरी रेटिना का जो सेंसरी लेयर्स जो रेटिना की होती है, जब वो सेपरेट हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट। कहाँ से, फ्रॉम द अंडरलाइंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। क्लासिफिकेशन, अंडर क्लासिफिकेशन वी हैव सीन रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। रेगमेटोजेनस मीन्स डिसकंटिन्यूइंग और ब्रेक। ओके, तो
because of that tearing, because of that hole into the sensory retina, the fluid will be passed from the vitreous space into the subretinal space between the sensory retina. Okay, that is called the rhegmatogenous retinal detachment. Rhegmatogenous retinal detachment. Then second one, it is the traction. This one, it is the tearing. Then traction, see here, pulling. दिस इज टीयरिंग, ओपन हो गया है. अब ये टीयरिंग मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पुलिंग हो रहा है. तो जो मिडिल, जो सेंटर पार्ट में हमने पढ़ा है, सेंटर पार्ट में हमारा क्या होता है, विट्रस जेल. तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन जितना इंक्रीज होगा, जितना सिकुड़ेगा, वो पुल करने लगेगा, अपनी ओर खींचने लगेगा सेंसरी रेटिना को. तो सेंसरी रेटिना को कैसे खींचेगा, अकर्स when fibrovascular tissues caused by any injury, inflammation, that pulls the, यही क्या करेंगे, pulls the sensory retina. कहाँ से, from the retinal pigment epithelium. Third, we have seen exudative. Exudative means, I have taught you, exudative means due to any wound fluid will be produced. ठीक है, तो any injury, any inflammation, vascular abnormalities, the result is fluid will be accumulate without the presence of hole or tear or break into the sensory retina. Then after that we have seen the causes. Due to aging, due to diabetic neovascularization, familiar tendency, hemorrhage, inflammatory process, hypermyopia or myopia, trauma, tumor, intraocular surgery. After that we have seen the pathophysiology of retinal detachment. Then vitreous fluid traction causes, मतलब vitreous fluid के traction मतलब pulling के वजह से क्या causes the retinal tearing or hole. Then vitreous fluid leak कहाँ से करेगा, through holes or tears behind the retina, and this occur the retinal suppression. Okay, this is called the retinal detachment. Then after that we have seen the assessment findings, floating spots, then recurrent flashes of light is called the photopsia. Then diagnostic test, under the diagnostic test we have seen ophthalmoscopy, indirect ophthalmoscopy, tonometry, then ultrasound, etc. Then complications we have seen blindness, swelling, watery eyes, redness, discomfort and blurred vision and itching. I hope you understood this topic, and tomorrow I will continue this topic, and tomorrow we will see the management of retinal detachment. Thank you.